University in 2006. He served as associate dentist at Dr. Altamish and Associates Dental Clinic, working as a general dental surgeon for 7 years. He is a fellow of the International College of Continuing Dental Education. He is a member of Pakistan Medical Commission and is the General Secretary of Pakistan Dental Association, Karachi. He has a vast and rich clinical experience of 15 years, and he brought his vision and dream into a reality when he established Durrani's Dental Clinic in 2019. Versatility is one of Dr. Durrani's known traits. Hence, he has not only treated patients, but also educated fresh graduates and undergraduates about the latest technology and skills at his co-founded Academy of Advanced Dental Sciences, located in Karachi. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Shoaib Durrani. Welcome, sir. Assalamualaikum. Can you hear me? Assalamualaikum, sir. Yes, sir, we can. Acha. Sorry about my hair. Abhi I just completed my Umrah and मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो. so that went really well. तो अभी तो खैर आ गए बाल मेरे काफी सारे, लेकिन ये कि hopefully soon enough it will be fine. How's your conference going? It's going well, sir. It went very great, smooth and great. This is our last day, and you're the grand finale actually of our event. No, I think you guys have honored me a bit too much. I'm one of the I just try to give my best towards dentistry, and I find that the youth is so sort of passionate, but sort of misguided in the sense that they don't know where to go. So though everybody will show the negative aspects of our practice and all the downsides of it, but 18 years into practice, I feel that when we graduated in 2006, it was my exam was on a rubber dam, and all he wanted to know was कि ये sheet कहाँ लगती है, और मैंने उनको बताया था, and I actually got a distinction on it. So this is 18 years ago. This was our standard. 20 years from my graduation, my teachers only saw gutta percha in a closed box one day before their exam कि रूट कैनाल करते हैं तो उसमें गटा पर्चा ऐसे डालते हैं. So वो हम उनके लिए एडवांस थे, आप लोग मेरे लिए एडवांस्ड हो गए. So things are getting better, and that's the way it should be. I mean, it's only been 76 years. Pakistan Dental Association was formed about in late 1960. तो खैर वो कुछ खास करती नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है कि slowly and surely it is getting somewhere. So one should not be completely distraught from it. Of course, sir, and we're so excited to have you on board with us. Would you like to share your screen, sir? या आपने interactive session ही रखना है? हाँ, interactive session रखेंगे because we have very less time. Okay. You told me 30 minutes, and the topic itself is very, very huge. So I just wanted to touch on the topic of how digital dentistry, what it is, and how is it going to impact dentistry today, and where is it going to take us in the next 5 years, not even 10 years. So uske mein I have like some general questions that I'm going to first address. Then what you guys can do is के questions अपने सोच लें, फिर 15-20 मिनट के बाद once I'm done with the whole bit, तो उसके बाद फिर then you can ask me as many questions as possible, और फिर we'll take it from there. And again, I was traveling, तो मैं बहुत proper मैंने presentation नहीं बनाई है, मैं interactive ही session कर सकता हूँ आज. So I hope all the 93 or 100 people, it's a big attendance, and I'm really grateful for it. I hope that you guys at the end of this discussion find something very worthwhile out of this entire thing. ठीक है? Yes, sir. All right. And looking forward to it. Okay, so my name is Dr. Shoaib Durrani, and I graduated in 2006. Just how I told everybody that the times that we graduated in were times where there was no social media. We used to have a very boxy computer, and internet was honestly just invented. There were no smartphones. So our generation, for that matter, has seen a huge change as far as dental innovation is concerned, and we're continuously seeing it. Now, if we are unable to embrace it, एक saying है, my father says it, and it's a brilliant saying, that you should never be the last to adopt
you should never be the last to leave something which is outdated, and you should never be the first person to adopt it. So right now, 2024 is the time when say 20% of the entire world's dentistry has shifted to digital dentistry. And I am proud also to say that a lot of Pakistani dental setups have shifted onto digital dentistry in one form or the other. The most common form of moving on to digital dentistry is digital radiographs. And I'm just going to touch on what digital dentistry is and how is it going to benefit you in your practice, and especially during the beginning of your career, because I worked at very good places in my life, and I was lucky enough to work there. Because one of my seniors told me to save the models on which I used to do my crown preps and my ortho cases, and then showcase them when I go to a clinic for a job, to take that along with me as part of my proof that this is the kind of work I know. Now you type in anything and you'll have your pictures, your radiographs, anything and everything available as a showcase of your abilities. And all the 93 people here will still have an edge over the 1100 graduates which are churned out of the dental colleges every single year. तो अभी आप लोगों के पास अपनी तस्वीरें हैं, so just get on with it, है ना? Don't hold back on showcasing what you know, and don't hold back on understanding what you really want to excel in. So digital dentistry basically comprises of digital radiographs, of course. Abhi aajkal digital impressions have been a game changer in my practice and the world over, because that was the one connecting link between the lab and then their CAD/CAM solutions, and then their turnaround time with a crown or a veneer. So those restorations, their entire turnaround time has really sped up now that we have to take an impression which is very comfortable and very cool looking for the patient, and we just email it to the lab in half a second, and they can actually send us a perfectly CAD/CAM fabricated crown or restoration in about 24 hours. This was unimaginable 10 years ago. Abhi, today we're just doing it like it's not a big deal. So everything is way more accurate when you use digital impressions. Of course, uska ek learning curve hai. I can't say that you can just point and shoot and take a picture and then wo kaam ho jayega. There's a certain level of it, and everybody who's attending this lecture today should understand that even me, I had to relearn a lot of things 2 years ago when I bought my first intraoral scanner. It's a different thing altogether. तो मुझ में और आप लोगों में कोई खास फर्क नहीं होगा. You would probably know better how to use the software. I had to retrain myself that this is what I have to do. Impression taking is a different thing. Digital impression taking completely different from taking conventional impressions. उसमें dry होना जरूरी है. Bleeding का बिल्कुल tolerate नहीं कर सकते आप. The margins have to be done very well. It just requires you as a dentist to do your job really well, because whatever you will create, image के अंदर वही आएगा. अच्छा, then the revolution that digital dentistry has brought in is that it helps you make the patient understand the kind of problems that they have, and सबसे important चीज है कि how are you going to make them visualize. इसमें एक छोटा सा note ये है that as far as dentistry, good practicing dentistry is concerned, it is a luxury, and I always say this, that it's a luxury. It's a luxury profession. You can't cut corners in dentistry and then expect to do good work. ये possible है नहीं. Clear and simple. You can जाहिर है, you can do anything. वो तो हमने भी बहुत किया है कि कहीं भी जाके वो अमेज़न की फीलिंग्स खड़े होके वो थोड़ा सा स्पून एक्सीवेटर से कर दिया. मैं उसको I can't call it. I mean, it's not a good standard of dentistry. So if you want to do a good standard of dentistry, so then it requires you to put in a lot of effort in learning skills and getting the right tools to give the kind of results to the patients that they expect from you. So अब इस point के ऊपर, if you have an intraoral camera, if you have a digital camera, if you have a good photography setup, if you have a digital radiography software, up to there's artificial intelligence where you take the impression, you take a radiograph, and in about 10 seconds it's going to tell you
its own findings that you can put in the symptoms, and it's going to tell you, okay, so in these three teeth, we feel that this tooth needs a filling, this tooth is very close, it might need a root canal, whether it's restorable, non-restorable. All of this is being done by AI now, as in हो रहा है ये already. मुझे इसमें कोई वो नहीं है. So अब इसका benefit क्या होगा कि I will have all these records with me, because dentistry, like properly practiced dentistry, is a long-term relationship with your patients. So the benefit will be that the first time they came in to me in 2019, so उस दिन से लेके 24 तक, I have all the records, I have all their radiographs, I have their pictures, everything in a single software. I can show it to them. देखें, I told you कि 19 में आपका ये था, you never listened to me. So now the patient also gets on a guilt trip कि हाँ ठीक है, I did ignore my own hygiene and I am getting all these problems. So it's they also appreciate the dentist, the dental field, and um, um, the kind of effort that you're doing to improve their overall gum health, dental health. So these records, of course, are very important for legal reasons as well, insurance purposes as well. It just takes a half a second to just pull up a record and send it over. Acha. Then um, uh, uh, एक चीज जो अभी बहुत कॉमन है ना, वो ये है कि डिजिटल impressions have become extremely fast. You can actually finish up a whole mouth digital impression in under 3 minutes. So 3 minutes to finish a dental impression, review it, and email it. Number one. Number two, 3 minutes to which is very comfortable for the patient as well. There's no gagging, there's no goopy messes, there's no mess around the face, around the mouth, around the gloves. There's no need for a repeat of the same process again. So that thing has really improved the acceptance of the patients towards your prosthetic work as well. अब जो डिजिटल इम्प्रेशन है ना, एक चीज है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये दैट द गम हेल्थ हैज टू बी सुपर. The gum health is not super, so then your blood and saliva control has to be super. If it is not super, so then there will be errors in the impression, and there's a chance that the impression is not milled properly, and eventually the restoration has a problem in it. So उसका एक पूरा तरीका है कि किस तरह करना है. कभी कोई वर्कशॉप करने का मौका मिला या कोई हो रही होगी तो I'll let you guys know that how to take digital impressions, because उसकी पूरी साइंस है. People will say that the digital impression is a flop situation only in Pakistan because उससे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ये वो. लेकिन अगर उसको सही से लिया जाए, you need an astringent, you need to do retractions, you need to make sure that the uh, area is not wet, and then you will have the most perfect impression on the planet. और जो different तरीके भी हैं, but बहुत आसान काम. That's really changed the game. You have to understand that digital and dentistry is not a thing that we should be thinking right now to adopt. Okay? Digital dentistry was introduced in the early 80s. I was born around that time. So yeah, the world has moved on to it. It's a real reality. You can really excel in your practice if you have a good hold of digital dentistry, if you are able to take good pictures, you're able to take good digital dental impressions. I can tell you, not many people can take dental impressions, digital impressions. है ही नहीं, क्योंकि वो इक्विपमेंट ही नहीं थी यहाँ पे, है ना. अभी 8-9, probably 10 practices at best right now have digital impressions, and um, उनके mixed reviews थे. Even we had some trouble initially. Then we had to relearn. I had to attend two courses to understand how to take proper digital impressions. Then my team also got the same courses, and now our digital impressions are going really well. They're very fast. वो हमारे all my aligner work, all of that is very fast. Inlays, onlays हैं, वो सारे बहुत fast हो रहे हैं. Everything is in minutes. The patient is really impressed कि okay, so this is like we've never seen this. पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर भी बहुत कम है. So बाहर से जो expats आते हैं, it's a big deal for them that they're sitting in London, and most of them go to NHS practices.
which isn't that advanced. Genesis practices over there are like our government practices over here. So private dentistry के अंदर बहुत excellent काम होता है वहाँ पे, but not many people are able to afford that kind of dentistry there, so they come over here, and then if we can offer them the best of Pakistani dentistry like this, so there's nothing like it. They're really appreciative of it, and they gain more confidence in the kind of Pakistani dentistry that we can offer. So you have to understand that digital industry is the now. It's the present. It's not the future of dentistry. It's the present of dentistry. The future of dentistry, now we're talking about artificial intelligence, and we're talking about robots, and we're talking about all these other things. That is going to be the future. And I don't see it happening anytime soon anywhere in the world in the next 10, 20 years. But what is currently present, and what every dentist should excel in now, is to understand digital dentistry. If असल में बात ये है that to me, I feel that most people know this. Most people know that we should take a picture of our filling. We should take a picture of the scaling that we did. But is it a good picture? The kind of effort that I will put in on a selfie, or me going to an amazing Instagrammable destination, I'm going to put in a lot of effort to get that kind of a video and a picture. But when I'm sitting on a patient, I'm going to take half a second to take the most dimly lit, unfocused, weirdly angled picture on the planet and be like, this is the filling I did. So what you guys require is that you guys get your, you don't have to buy something crazy. You just have to get to a small ring light and a small camera, take a before and after picture. It will completely like elevate your level from the rest of the normal dentists who are using mobile cameras. Mobile cameras की भी sign से कौन सा अच्छा कौन सा नहीं. But if you have like, and then there's a standardization also. So you have one camera, one lens, one light. So now every time you take a picture is going to be the same. There's no, so every time, say after 2 years, your first picture will look the same as your 400th picture. So these things matter if you want to show that you have been working excellently for 5 years or 2 years or 6 months. तो एंड इसका रिकॉर्ड भी होता है, रिकॉर्ड बना रहता है आपके पास फाइल्स में, क्लाउड पे, हर जगह पे होता है. सो ये हो गया. फिर उसके बाद फिर यू हैव डिजिटल डेंटिस्ट्री के अंदर कम्स इन design. Now, I have a software where once we do the first, we used to just do the digital scan. Now we do the digital scan, and then now we have a software on which we make the restoration as well. Then we send it over. उससे पहले I used to just mark the margins and then send it over to the lab. उससे क्या हो रहा है, और टाइम बच रहा है. मैं इतना अच्छा नहीं बनाता क्राउन अभी, और अभी यहाँ से हम डिजाइन करके भेज दें तो क्राउन जो लैब है वो अब हमें बना के दे देता है थ्रू द कैट कैम मशीन. बहुत अमेजिंग नहीं है, लेकिन जीरो भी नहीं है. बट आई नो दैट इन द थ्रू एट द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी गुड एट इट ऑल्सो. सो इस चीज का फायदा क्या होता है? मैंने एक रैंडम लैब को भेजी यहाँ से, डिजिटल इम्प्रेशन लेके भेजी फाइल. If I don't know how the software works, I will never be able to understand where that guy is going wrong in making my restoration. So you have to be very well versed in lab processes, चाहे वो conventional हो या वो digital lab processes हो. So उससे उससे फायदा ये होता है कि आपको उनकी लिमिटेशन पता है. अगर आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप यहाँ इम्प्रूव करते हैं. अगर आप वहां से उनको इम्प्रूव करवा सकते हैं, so then you call them up and you tell them, okay, this is where you're going wrong, you fix this. बट उसके लिए मेरा वो पता होना जरूरी है ना. अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे यहाँ इंटर्न्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन होते हैं. तो उसमें होता ये दैट स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ स्टडीइंग बेसिक डेंटिस्ट्री. 4 साल पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट डेंटिस्ट्री में छुट्टी नहीं है भाई. तो अभी 18 साल हो गए और अभी तक हम पढ़ रहे हैं और वो पढ़ते रहेंगे. डेंटिस्ट्री का सीन यही है. यू कांट जस्ट लाइक स्लैक ऑफ. इट्स वन ऑफ द मोस्ट sought after professions in the world. तो इसके ऊपर आप स्लैक ऑफ नहीं कर सकते. जितना आप इस पे मेहनत करेंगे उतना आप उसके अंदर एक्सेल करेंगे. प्लेन एंड सिंपल. सही है. So that would bring me to the end of my small uh, overview about digital dentistry and embracing it, with special notes for young students and young doctors towards
realizing that this is a reality. और ये फैक्ट मैं अभी बता रहा हूँ, जितने क्लिनिक्स आप लोग अभी अप्लाई करेंगे, if you know how to take a digital impression and they have a digital scanner there, you have an immediate edge over it, just like that. कुछ भी नहीं था, 2 कोर्स अटेंड किए ऑनलाइन, फ्री वेबिनार है, और उसके ऊपर वर्कशॉप करें, किसी क्लिनिक पे चले जाएं, वहां पे बोलें कि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, somebody will help you in understanding it better, and now you are better, right? So just keep your minds open and just embrace it as soon as possible. It really makes your life easy. अभी कभी कभी आई हैव टू चेक समथिंग आउट, तो इफ आई कौन मॉडल ढूंढेगा, बंदे को बुलाएगा, वो लाएगा दिखाएगा, तो अब आई जस्ट ओपन इट ऑन माय लैपटॉप एंड आई नो कि अच्छा ठीक है, ये मार्जिन था यहाँ पे, लैब ने गलत कर दिया था, उसकी मैं पिक्चर लेके व्हाट्सएप कर देता हूँ, लैब उसको ठीक कर देता है। बहुत तेज है काम अब, उसको एम्ब्रेस करें। Thank you so much, sir, for such an interesting topic and a lecture on such an interesting topic, because digital dentistry is the new if thing in the market right now. It's not new, that's the thing. So I mean, when we graduated, we used to study about CAT cam, सही है, So, in 2006, सही है, we used to study about CAT cam। तो वो उस वक्त दुनिया में तो हो ही रहा था, हमारे सीनियर्स टीचर्स बोलते थे कि ये पाकिस्तान में नहीं होता, मैंने कहा "भी ठीक है, नहीं होता"। लेकिन अभी तो हो रहा है ना, मतलब फुल, एवरी, मतलब एवरी लैब, you pay them enough and they will do it, they have the machinery, it's not cheap machinery also, even they are investing a lot of money in it. So the exactly. ultimate benefit goes to the patient, and eventually it benefits the dentist and the dental practice. So my main point is always that as a clinician, well, you have to be a thinking clinician all the time. You have to think how you are going to improve on anything that you do. पूरी दुनिया को पता है इम्प्रेशन कैसे लेते हैं, मैं मेरा ये बड़ा सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया को पता है इम्प्रेशन कैसे सही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सही ले पाते हैं। तो उस बंदे ने थोड़ी ज्यादा मेहनत की थी ना, वरना तो नहीं होगा इस तरह के, बस लोड किया और ले लिया, ये नहीं हो सकता। सो पुट इन द एफर्ट, जस्ट लाइक टेक एंड स्पेंड द टाइम, इट रियली चेंजेस द गेम। द फर्स्ट जॉब आई गॉट, वो मैंने इतने एक्सट्रैक्टेड टीथ के ऊपर रूट कैनाल की हुई थी कि वो उनकी एक डॉक्टर किसी चीज पे फंसी हुई थी ऑन लोअर सिक्स के मीजियो बकल रूट कैनाल नहीं मिल रहा था, एंड ही वो डॉक्टर टोल्ड मी कि जाओ देखो अगर मिल जाता है। आई वेंट इन और वो फौरन ही हो गया, अल्लाह की करनी, एंड आई गॉट हायर्ड, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस थी। मैं नहीं कह रहा वो थी बड़ी बात थी, लेकिन मतलब उसका प्रोसीजर ये था कि मैं ख्वारी करूं कि मैं एक्सट्रैक्टेड टीथ के ऊपर अपना हाथ साफ करूं, और फिर इवेंचुअली कोई डेंटिस्ट मुझे बोले कि जाओ जाके कैनाल लोकेट करो। अब आई डोंट इवन फॉलो दैट मेथड एनी मोर, बट लाइक बैक इन द डे जो था हमारे पास वो यही था। Well said. And we'll move on to the question answer session because we have a few questions for you. First one वेरी is गुड, regarding you mentioned आस्क where. मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। Thank you so much, sir. Sir, you mentioned कि workshops और इस तरह के courses करने चाहिए. So a participant is asking, what workshops can we attend? Which institutes or specific dentists offer these courses? Okay, so what you can do is that you'll have to Google this, because आज पाकिस्तान में तो नहीं हो रहे डिजिटल डेंटिस्ट्री पे अभी कोर्सेज, वो बहुत नया है अभी ना यहाँ के लिए। तो what you can do is that you can go online. So when you search online, so there are certain institutes where you can just register. Whenever they offer a new course, so they send you a free webinar link. When they send you a free webinar link, so all you have to do is just like today, you have to just open it up and start listening. तो उससे ना उसकी आपको बेसिक सारी समझ आ जाएंगी, and then you can, because like I said, there are about 10 or 12 clinics all over Pakistan, इतने ज्यादा नहीं है, तो you can just, anybody is going to make the effort, say tomorrow, कि वो कल जाके बोले कि प्लीज मुझे बता दें ये कैसे होता है। वो बाय द टाइम उसी क्लिनिक के ऊपर 200 डॉक्टर्स पहुंच चुके होंगे, वो फिर डॉक्टर्स, वो क्लिनिक बोलेगा भाई वी हैव बेटर थिंग्स टू डू, तो आप अब चले जाएं। तो आप कल ही मूव ऑन करें और कहीं जाके सीख लेंगे किस तरह करना है, तो दैट्स गोइंग टू हेल्प। एंड आई लर्न दिस थ्रू, आई लर्न digital impression taking in a workshop that I attended in ADEC 2 years ago, and that's where I bought the scanner also. And then after that, I did, I think, 3 4 online courses where they were a little advanced on how to manage scanning impression problems. तो वो इसी तरह होता है कि मतलब जब ऑफर होगा तो होगा,
तो ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। तो आई होप यू गाइस जस्ट ईमेल अपना उसमें डाल देंगे तो यू गेट एवरीथिंग दैट यू लाइक। Thank you, sir. और हमारे participants कह रहे हैं कि sir, you should organize workshops on it because you're so well versed on this subject. We would love to have a workshop um, coordinated by you. हाँ श्योर, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन कंडक्टिंग अ वर्कशॉप। बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैं अनाउंस करता हूँ, डॉक्टर मारिच को बता देता हूँ मैं। एंड देन आ जाएं आप लोग, इफ यू वांट टू सी कम इन टू अ फिजिकल वर्कशॉप, सो मोर देन वेलकम, विल डू बिल्कुल दैट। इफ sir. यू वांट एन Uh, ऑनलाइन सेशन, जी दैट आल्सो वर्क्स। वो जो वर्कशॉप होती है and अगर माय प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो कम लोग होंगे उसमें, बस 20 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, मेरा छोटा सा क्लिनिक है। और ऑनलाइन करेंगे तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। सही है sir. Inshallah, we'll plan this. We have Dr. Zaida इट्स अ गुड Varsi and आइडिया। she wants to say a few words. Dr. Zaida. यस अस्सलाम डॉक। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। Alhamdulillah. Sir, I have a question from you. Sir, can you please tell us हम्म some challenges that practitioners you faced when transitioning from digital, like after proper अब digital dentistry की तरफ move करे थे, तो कौन से challenges आपको initially face करने पड़े और आपने उसको overcome कैसे किया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो व्हेन वी बॉट द स्कैनर ना, तो उस वक्त मेरी एक्साइटमेंट थी कि मैं स्कैनर ले लूं। ठीक है, मुझे बहुत, मैं एक आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस, आई थॉट इट वाज अमेजिंग हाउ फास्ट दीस गाइस आर मूविंग। एंड उस वक्त कराची में लैब्स थे सिर्फ 3, वो भी इतने फुली फंक्शनल नहीं थे उसके ऊपर डिजिटल डेंटिस्ट्री पे, क्योंकि उन लोगों को खुद ही इंप्रेशन नहीं मिलते थे 3D, तो वो किस तरह काम करेंगे ना। सो दे न्यू हाउ टू वर्क इट बिकॉज दे वर्क इन अबू धाबी और दुबई, बट उन लोगों को हमने आज तक नहीं भेजा, तो उन लोगों को भी कोई इतना क्लियर नहीं था। तो मैं तो बस वो स्कैनर लेके आ गया। अब फिर पता चला कि उसके लिए दुनिया के एडवांस तरीन लैपटॉप चाहिए, यू हैव नीड द फास्टेस्ट इंटरनेट। इंटरनेट तो हमारा था फास्ट, लेकिन लैपटॉप यहाँ नहीं मिल रहा था, फिर मुझे वो दुबई से मंगवाना पड़ा। फिर जब ये सारा हो गया, तो फिर जो द आई मीन आवर कंपनी इज वेरी गुड हु गॉट अस द सॉफ्टवेयर, दे डू रेगुलर अपडेट्स, सो आई हैवंट रियली फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स। सिर्फ ये था कि मुझे क्लियर, जब मैंने लिया था ना, तो मुझे उस वक्त ये इसकी जो हार्डवेयर होती है ना लेने की, के कंप्यूटर कौन सा लेना है, उसमें कार्ड कौन सा लगना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट ग्राफिक्स डिजाइन कार्ड लगने चाहिए, एंड इंटरनेट बहुत फास्ट होना चाहिए। एंड लैब्स को भी हमने फिर यहाँ पे वी हैड टू work around the labs because first they were a little hesitant. Then there's this lab who say I would do most of my veneer work with them also. So then we work together on it. तो अभी तो हम बिल्कुल ऐसे है कि ईमेल किया, उसमें लिख दिया, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में होता है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो 2 दिन में हमें भेज के दे देता है काम। Thank you, Thank sir, for the answer. Sir, one more question from my side कि आप जिस तरीके से या इम्प्लीमेंट आप बता रहे थे कि वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हैं हम या कोई भी, इसके अलावा कौन से कोर्स आउटलाइंस वी कैन incorporate in our education so that we can have better understanding of this digital dentistry as well. If you have any idea about this. इनकॉर्पोरेट इन योर एजुकेशन। यस सर, मतलब जैसे कि हम कौन से ऐसे नए कोर्सेज के मतलब ले सकते हैं अदर देन दीज वर्कशॉप्स, आप बस बात करें कि अगर जैसे, क्योंकि बहुत ये डिजिटल डेंटिस्ट्री की जो वर्कशॉप्स हैं ये क्या कहते हैं इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, बट इफ वी प्लान टू डूइंग इट, हम कोई कोर्सेज अगर हम इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहें अपनी स्टडीज में या कुछ भी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर, इन योर तो व्हाट? आई थिंक बुक्स में तो होगा ना ये नहीं है, ऑलरेडी के थोड़ा डिजिटल सा है। स्कैन। जी जी। हाँ, तो वो अगर नहीं है तो अब देखो ना, द बुक्स आर जस्ट नाउ, यू से 20 years ago they were the only reference, they were the only reference for me, बुक्स एंड आर्टिकल्स। हम लोग आर्टिकल्स सब मिलके खरीदते थे, वो उसकी जर्नल की सब्सक्रिप्शन, और फिर सारे डाउनलोड कर लेते थे पढ़ने के लिए। तो लेकिन अब वो ऐसा नहीं है ना, अब तो यू डोंट हैव टू गो ऑन अ जर्नल्स वेबसाइट, यू जस्ट हैव टू गूगल इट एंड यू हैव द आंसर्स। तो लाइक आई सेड, मैंने भी अभी इसी तरह सीखा। वंस आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस दैट ओपन माय आईज टू इट, देन आई बॉट इट। देन द कंपनी ट्रेन्स मी आल्सो, ट्रेन्स माय टीम आल्सो with everything that's new coming in. Abhi right now they have a full on orthodontic aligner ka simulator also. So we do the movements on the software and then it generates a video that I show it to my patient. तो ये मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, बट मेरा जो इनिशियल लर्निंग थी वो ऑनलाइन कोर्सेज थे। और वो अभी इस तरह मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा, आई हैव टू गो थ्रू माय ईमेल, बट 2-3 फ्री
टीचिंग वेबसाइट्स हैं, दे जस्ट सेंड यू एन ईमेल एंड यू जस्ट लॉग ऑन, इट्स एज सिंपल एज दैट, यू दैट्स मोर देन इनफ। बाकी अगर हम पाकिस्तान Yes. में वर्कशॉप्स करेंगे, आप लोग सोचें इसके हम्म। ऊपर अच्छा सा, तो मैं करा दूंगा वर्कशॉप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। ठीक है सर, ये तो डेफिनेटली, बहुत अच्छी चीज हो इंशाल्लाह जाएगी। सर। बिल्कुल सर। Do सर, you वन think लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, व्हाट आर द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल डेंटिस्ट्री दैट यू फेस्ड, और या आपको कौन सी लिमिटेशंस मिली हो? आई वुड लाइक टू हियर अबाउट दैट एज वेल। We, like I said, when I got it ना, तो उस वक्त I had found out that दुनिया में तो हो रही है डेंटिस्ट्री ना, और माय फ्रेंड्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, उन वो लोग बहुत एक्साइटेड अपने आईटेरोज लेके और स्कैन कर रहे हैं और अलाइनर्स में बहुत यूज कर रहे हैं। हम लोग भी अलाइनर्स के लिए यहाँ पे बुलाते हैं, उसको बुलाते थे शुरू में 10 साल पहले, कि वो आता था स्कैन करता था। तो वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड तो हो गया, तो अब उसको बस उसको फ्लो में लेके आना था। तो दैट आई विल वी वर एबल टू मैनेज दैट रियली वेल, बिकॉज आई स्टार्टेड लर्निंग द सेम टाइम माय टीम स्टार्टेड लर्निंग, एंड दे टेक बेटर इंप्रेशंस देन मी नाउ, बिकॉज मैं तो कुछ बहुत जिद करता है तो अब करता हूँ, लेकिन वो लोग तो टेक हार्डली एनी टाइम। सो अभी वो कहीं भी जाएंगे, वो जाके बोलेंगे हम तो स्कैनर से, इसमें ये हमारे इंप्रेशन है, ये ईमेल है, ये फाइल है, 2 सेकंड में वो अपनी स्किल दिखा सकते हैं। तो आई हैड ड्रॉबैक्स ऐसा नहीं है, पीपल विल से कि नहीं लैब्स काम नहीं कर पाते। बात में मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, अगर दुनिया में सब कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अपनी विल में हारते हैं कि हम बोलें कि नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकता। उसका बहुत बेनिफिट है, एक्यूरेसी इज ओके। सो अ डिजिटल स्कैनर, द वन दैट आई हैव, स्कैन्स एट 3 माइक्रॉन्स। कितना? 3 माइक्रॉन्स। 3 माइक्रॉन से वो कितना बेहतर हो जाएगा? 1 माइक्रॉन, 0.000 माइक्रॉन, राइट? तो वो उस एक्यूरेसी की सिग्निफिकेंस क्या होगी जब उसको प्रिंट करेंगे? अभी हमारा स्कैनर है 3 माइक्रॉन्स पे, और जो बेस्ट 3D प्रिंटर है ना, वो 21 माइक्रॉन्स की एक्यूरेसी पे प्रिंट करता है। तो 3D प्रिंटर को अभी बहुत इम्प्रूव होने की जरूरत है ताकि वो हमारे लेवल पे आए। तो मतलब इतनी एक्यूरेसी होगी, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल सर। डिजिटल डेंटिस्ट्री से ही सर कि बड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा थॉट हम्म। प्रोवोकिंग। The question is, will digital dentistry eventually replace the actual practitioner anytime soon in the future? नहीं, नो वे, आई डोंट थिंक सो। आई हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस, अभी आई वेंट समवेयर, तो वहाँ पे वहाँ पे हो रहा था, वो वहाँ पे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे, और वो एआई डिजाइनर्स थे, ग्राफिक डिजाइनर्स थे। वो लोग पागल हुए हैं सारे, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर आर रियली जनरेटिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो सवाल यही था कि मतलब मैंने बोला कि एआई से अभी हमें डर नहीं है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ना अभी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसको अभी 20 साल और लगेंगे उसको थोड़ा पुराना होने में, कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मैं एक रूम में जाऊं, वहां वो बटन दबाऊं, वो मेरा मुंह खुले और रोबोट आए, उसके लिए वो मेरी जनरेशन के लिए नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरे डेंटिस्ट से बात करूं, मैं आप लोगों की जनरेशन के लिए भी है। मे बी अभी जो करंट जनरेशन अभी पैदा हुई है, उन लोगों के अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होते जाएंगे, तो फिर वो शायद रोबोट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। अभी माई जनरेशन और माई अर्लियर जनरेशन इज नॉट okay with Tesla's driving on its own. We will always have our hand on the steering wheel. Your generation would probably have the same, but somebody who was born in an automated world, say 50 years after, will be okay with the dentist, with the robotic dentist. अच्छा, Hmm. diagnosis के अंदर AI is helping us a lot. AI softwares are helping us a lot. That's to our benefit right now. ठीक है ना? तो एआई अपने अपनी अपनी कंप्यूटिंग से हम लोगों का काम अभी आसान बना रहा है। तो एज ए डेंटिस्ट, इफ आई एम्ब्रेस इट, वो मेरे फायदे में, चाहे वो मुझे इम्प्रेशन टेकिंग के अंदर हो, मुझे कैट कैम बनाने में, मतलब वो जो कैट कैम का सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर आप उसको एक साइड से दूसरी साइड पे उसको कॉपी कर देते हैं, वो खुद ही, मतलब माई 1/6 विल लुक सिमिलर टू माई 2/6। आई जस्ट हैव टू कॉपी इट, वो इन्वर्ट खुद ही कर देता है सब कुछ, मेरे को कुछ डिजाइन नहीं करना। तो पहले तो ये होता था, लैब में बैठ के वो लेयरिंग होती थी, फिर उसको पॉलिश होती थी, फिर उसमें उसकी पूरी शेपिंग होती थी, फिनिशिंग, कॉन्टूरिंग प्रोसेस, ऑल ऑफ दैट नाउ इज जस्ट फिनिश बिकॉज यू जस्ट कॉपी इट एंड प्रिंट इट, और वो कैट कैम के अंदर बन जाता है। फिर अभी क्या रह गया फिर? खैर, मतलब हम सब नहीं करते इस तरह, लेकिन अगर आप करें, हम लोग इस तरह करते हैं क्योंकि वी गेट गुड पेशेंट्स हु पे, सो इफ दे आर एबल टू पे, सो देन वी आर एबल टू डू गुड वर्क।
So why will they pay? They will pay if I showcase all of this. अभी मैं बोलूंगा कंप्यूटर से बन के निकल के आ गया, नहीं है, लेकिन अगर मैं उनको दिखाता हूँ, मैं आई शो इट टू देम दैट दिस इज द क्वालिटी दैट यू गेटिंग, द वर्क, द लैब, us, everything, this is what it is. So anybody will pay when they see value in it. If they don't see the value, they won't pay. तो उन्होंने वो वैसी दुनिया में देखा हुआ अपनी प्राइवेट डेंटिस्ट्री में बाहर, वो कहते हैं ये तो यहाँ पे कैसे कर लेते हैं आप, तो वो हम बताते हैं भाई हम कर रहे हैं, आप यू जस्ट पे, एंड दैट्स व्हाई आई से यू पे व्हाट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। इट्स वेरी सिंपल। सबको करना चाहिए, आप सबको। तो अभी से सोचोगे तो 5 साल बाद सब चैंपियन हो गए इसके अंदर। हाँ, वी विल नेवर गेट इट रेलेवेंट एवर, देयर इज नो चांस। Another question here we have regarding digital dentistry labs. Are there any labs out of Karachi that are digital dentistry compatible, like in Lahore or Islamabad? I personally don't know of any, but I know this that the labs over here, they're working with doctors across Pakistan. Somebody who scans it, they have to email it. तो उसमें कोई ये नहीं है कि कराची में ही होगा, वो ईमेल कर देते हैं, यहाँ पे वो बन जाता है। दे जैसे TCS इट बैक टू देयर सिटी, तो वो उनके यहाँ क्राउन्स बन के पहुंच जाता है। तो वो भी 3 दिन 6 दिन हफ्ते की कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ। आई वॉज इन, यू नो, देयर वाज अ टाइम बिफोर कोविड व्हेन आई वाज प्लानिंग ऑन एक्सपैंडिंग माय प्रैक्टिसेस अक्रॉस प्रोविंसेस, और बहुत मैं ना प्लान करके बैठा हुआ था। तो व्हेन आई डिड माय मार्केट रिसर्च, तो पता चला जो हमारा कराची का टर्न अराउंड टाइम है ना, 5 से 6 दिन का, वो तो है ही नहीं कहीं पे। वहां पे वो बाकी सिटीज में यू आर लुकिंग एट 2 वीक्स और समटाइम्स 3 वीक्स ऑल्सो। तो यू डोंट मतलब मैं इसी बात पे शॉक हो गया था उस टाइम पे। मैंने कहा ये तो बहुत ही लंबा टाइम है भाई। तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। अब हम 2 दिन में करके दे देते हैं, वो और अच्छा है। तो अब जो किसी और सिटी के अंदर है, आप स्कैन करें, ईमेल करें, लैब यहाँ पे बना के भेजेगा आपको, आप उसको लगा लें। सो सिंपल, परफेक्ट है। इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अब जब तक पाकिस्तान में नहीं थे डिजिटल लैब्स, तो लोग यहाँ से अबू धाबी, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर भेजते थे ईमेल करके, वहां से फिर वो डब्बों में बन के यहाँ पे आती थी शिपमेंट। बिल्कुल सही। With the advent of technology, I think वही चीज़ अब पाकिस्तान में बहुत localized हो जाएगी. Doesn't depend on या location. या More so your या internet. ये तो exactly, it's very, I mean, it's moving really fast. So students and doctors should not like, मतलब आप जल्दी से दिमाग खोलें इसके ऊपर और घुस जाएं इस चीज के अंदर, बहुत काम की चीज है। और अगर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना है वो अलग चैप्टर है, बाहर भी अगर प्रैक्टिस करना है, इट इज गोइंग टू बी एन एडेड स्किल इन योर स्किल सेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत ही जबरदस्त चीज है। मेरे जो कोलीग्स थे ना पुराने, जो अभी बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेरी मतलब वो कहते हैं तुम्हारे पास कहाँ से आ गया ये यार, ये तो इतना में होता है, ये होता है, वो होता है। उन लोगों के लिए बड़ी बात है। मैं कहता हूँ भाई हमें यहाँ मिल गया, अब क्या करें। So, it's going to, if I go somewhere and practice and I'm like, we scan this, we do the design, then we mill it in the machine. So, वो भी हैरान होते हैं इस बात के ऊपर अभी। तो आप हमारे जमाने में हो रहे हैं, तो आप लोगों के जमाने में तो कोई बड़ी बात, फटाफट। और जहां तक सवाल है कहाँ सीखे उसके लिए किसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा उसका, या कोई कोर्स कराना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी पढ़ लेना, गूगल पे पढ़ ले, गूगल पे उसको खोलेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स। कोई नहीं सर, गूगल पे पढ़ के फिर हम एक वर्कशॉप कराएंगे आपके साथ, ताकि फिर उन्हें कोर्स वो कंटेंट सारा मोर मिल देन जाए। वेलकम, मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम, हमारा पूरा कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने मेंशन किया था अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस का, एंड इन दी इंट्रो मेंशन किया आपने 2019 में जाके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ओपन की, बाकी में पहले आप वर्क करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टाइम टू ओपन योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस? I personally think that one should open their practice as soon as they get out of dental clinics, dental schools. क्योंकि आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस खोलें। ये मेरा एक पूरा बिजनेस मॉडल है। कि मेरा दिमाग होता ना 18 साल पहले, तो मैं ऐसे करता कि मैं अपनी एक प्रैक्टिस खोलता, उसमें मैं अपने से सीनियर डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करता, ठीक है, लेकिन वो क्लिनिक मेरी होती, ठीक है। वहां पे मैं अपने से सीनियर डेंटिस्ट को रखता, वो आके अपना काम करते हैं, मैं उनको भी शैडो करता। तो मैं उसके अंदर सीखता, अच्छा ठीक है, ऐसे करना है, बात ऐसे करनी है, काम ऐसे करना है। एंड आई वुड स्पेंड लाइक हाफ अ डे एट अ better dental practice, right? To see how different dental practices are working also. So in the first say 2 3 years, yeah, 5 years also, most dental clinics are not, they don't consider you a competition as far as
देयर प्रैक्टिस इज कंसर्न। लोगों को बड़ा डर होता है ना, पेशेंट कोई चोरी कर लेगा उनका। तो वो अनफॉर्चुनेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रोजी रोटी तो अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, आप ना उसको ला सकते हैं ना आप उसको भगा सकते हैं, तो वो आएगा खुद ही। सो द फर्स्ट 5 years you have to spend on interning and running your own practice, because running your own practice is a business. It's not like a charity show. तो you have to treat it like a business. अभी मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना कि आप जूनियर डेंटिस्ट हैं, आपने 2 सीनियर डेंटिस्ट हायर करे, ये बिजनेस डिसीजन है। इसमें उनकी सीनियरिटी या उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं हो रही। अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं, आप कोई अनएम्प्लॉयड है, आपने उसको हायर कर लिया, उन्होंने आपके लिए काम किया, आपने उनको तनख्वाह दी, दिस इज अ बिजनेस डिसीजन। दिस इज नॉट के कोई चैरिटी काम हो रहा है, या वो आप पे एहसान करें या आप उन पे कोई एहसान करें। सही ना? एंड देन डेंटल प्रैक्टिस के अंदर जो आपने सीख लिया है वो सारा अपनी जगह पे, लेकिन द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री हैज टू बी अंडरस्टूड properly, and you will only understand it when you have your own money invested in it, your own money, or your uh, say parents money or somebody else's money, but whoever's money, if your own money is invested in it, that's when you're going to know. मैंने अपने सारा इक्विपमेंट जो इतना है, वो मेरे पास 13 साल पुरानी चीजें जो मेरी हैं, लाइक आई बॉट देम ऑन इंस्टॉलमेंट ईयर्स अगो, लाइक 3-3 6-6 महीने 15-15 हज़ार रुपए भेज भेज के मैंने खरीदे। वो आज भी मैं वो यूज करता हूँ। मेरे क्लिनिक में उससे नई चीजें रखी हुई हैं, लेकिन मैं यूज नहीं करता, क्योंकि मेरा हाथ नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। मैं, दे लाइक माई पार्टनर्स इन माई वर्क। सो यू सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो अभी लड़कियों का क्या होता है, लड़कों में गाड़ी से आपको प्यार हो जाता है, बाइक से प्यार हो जाता है, आपको ऐसी अपनी चीजों से ना लगाव हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मेरा तो डेंटल टूल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो काफी है ये मसला। बट या, सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, as soon as you get in, as soon as possible. डोंट होल्ड बैक के अभी तो हमने पढ़ा है, अभी तो हम ग्रेजुएट करा है हमने, अभी तो हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जब बिजनेस करेंगे ना, तो बिजनेस माइंडसेट के अंदर घुसेंगे। डेंटिस्ट्री का एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिस जो रन होती है ना, वो प्रैक्टिस एज अ बिजनेस रन होती है तो सक्सेसफुल होती है। आप अपनी दोस्तियां और रिश्तेदारियां बनाएंगे तो आपका काम कभी भी नहीं चलेगा। दुनिया का किसी बिजनेस में ऐसे नहीं होता। हम पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन आप, मैं तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। गलत है। यू विल बी रिस्पेक्टेड व्हेन यू ट्रीट योर ओन प्रोफेशन विद रिस्पेक्ट। It has to be that way. And unknown people will trust you faster than people who know you very well. It's just a human behavior thing. तो आप बिजनेस के अंदर मार्केट करें, आप अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करें, इतना हो। ऑपरेशन ऑप कॉस्ट होती है एक ऑपरेशन कॉस्ट, हाँ, उसे 1 साल की ऑपरेशन कॉस्ट अपनी क्लिनिक की स्टार्टिंग के अंदर अलग करके रखें, ताकि ये ना हो कि हर महीने बैठे हुए कि रेंट कैसे देंगे और मटेरियल कैसे मंगवाएंगे। वो बुरा तरीका है, उससे आप परफॉर्म नहीं कर पाते काम। आपने सब कुछ लगा दिए पैसे, और अब आप बैठे हुए सिर्फ पेशेंट को सही से ट्रीट करना है। पेशेंट सेटिस्फैक्शन और पेशेंट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का जो वर्ड है ना, उसे डेंटिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। आप एक डॉक्टर हैं, एज ए डॉक्टर अभी मैं जाऊंगा किसी कि मेरे वो लगा दे, स्टंट लगा दे, तो मुझे थैंक यू बोलना, मैं उसको थैंक यू बोलूंगा, आपने अच्छा से स्टेंट लगा दिया, मेरी जान बचा ली। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने इंजेक्शन लगा दिए आपने, मैं तो तकलीफ हो गई मेरे सीने में। आई विल नेवर डू दैट, बट दैट्स फॉर मेडिकल डॉक्टर्स। बट डेंटल डॉक्टर्स के मामले में आपको ये पूरी बातें आप उसको एंटरटेन करते हैं कि इंजेक्शन है, कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ट्रीट योरसेल्फ, treat consider yourself a doctor also. When you're treating patients, the patients will respect you if you treat your profession with respect. Otherwise ऐसी चलाने को कुछ भी चल जाता है, लेकिन वो मजा नहीं आता उस काम के अंदर। Thank you for that answer, sir. जरूरी है, मैं आई वुड रियली सजेस्ट कि यू गाइस, इफ यू कैन मैनेज, बहुत सारी हैं थाईलैंड वायलैंड में भी, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इंटर्नशिप टू सी हाउ क्लिनिक्स आर रन, टू सी हाउ प्रैक्टिसेस आर रन, यू नो तो वो एक अलग सीन है। वो ऐसा नहीं है कि बस मैं बहुत अच्छी फीलिंग करता हूँ तो मुझे मेरा क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लिनिक प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट चैप्टर। तो वो जितनी जल्दी आप पैसे लगा के उसमें घुसेंगे ना, उतनी जल्दी आपको समझ आएगा। बट सोच के घुसना है बस ये कि मतलब यू वांट टू डू दिस परमानेंटली। हिट एंड मिस इज बैड आइडिया। अब डेंटल प्रैक्टिस इस वक्त करेंटली वो भी कर रही है ना, दे आर मेकिंग polyclinics where they're doing aesthetic work and dental work Hmm. and वो क्या है, weight loss. So
this was done elsewhere in यूरोप में, इंग्लैंड में बहुत कॉमनली हो रहा था. बट वो ओवरऑल क्या होता था कि वन बैड पेशेंट ऑफ डर्मा, उसके चांसेस ज्यादा हैं, है ना, बट डेंटल के कम है. बट बैड पेशेंट ऑफ डर्मा वुड रिफ्लेक्ट बैडली ऑन योर डेंटल प्रैक्टिस, एंड योर डेंटल प्रैक्टिस इज योर मेन एलिफेंट. नाउ दैट्स द मेन अर्निंग बिजनेस. तो आप जिस चीज को ऐड ऑन कर रहे हैं, कभी कभी वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है आपकी. जैसे मेरी मेन डेंटिस्ट्री है, और मेरा कोई स्किन का पेशेंट खराब हो गया, तो उसका पूरा खानदान मेरी डेंटिस्ट्री से भी चला जाएगा, और फिर मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ बैठे रखूंगा. सो यू हैव टू treat the thing as a business if you want to make money out of it. Well, we have so many more questions. I think I'll take two पूछे more. पूछे पूछे पूछे, मेरे पास है टाइम. बट ये अभी वो पूछी थी ना, विच कैन बी ग्रुप टुगेदर. नथिंग. जनरल डेंटिस्ट्री इज इनफ. General dentistry is so much, it's not even funny. I'm a general dentist. I mean, people think I'm some cosmetic dentist, but I'm actually a general dentist. I've really worked on my general dentistry. तो मैं बहुत सारे काम बाकी लोगों से शायद बेहतर करूंगा, लेकिन मतलब मैं बहुत मेहनत करी उसके ऊपर, और उसकी इक्विपमेंट है मेरे पास. तो मैं इस तरह से अपने आप को ना जस्टिफाई करता हूँ. और फिर मेरी लिमिटेशंस भी हैं. वो मुझे को मैक्स फैक्स कोई कैंसर का केस होगा, आई विल रेफर टू अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन. इट्स वेरी सिंपल. आई डोंट वांट टू ट्रीट एट ऑल. तो लेकिन जो मेरी जनरल डेंटिस्ट्री है, दैट कैन अर्न मी अ लॉट ऑफ मनी, एंड इट कीप्स माय इंटरेस्ट वेरी हाई. चाहे वो कोई भी प्रोसीजर हो, बहुत इंटेंस काम है. इफ यू रियली अंडरस्टैंड डेंटिस्ट्री, दैट्स मोर देन इनफ टू लास्ट यू लाइफ टाइम. स्ट्रेसफुल काम है. बिल्कुल सर, और बर्नआउट का रेट काफी हाई है अमंगस्ट हाँ. यंग. तो या सो आई मीन, ये जो हर वक्त मैं इधर उधर निकलता रहता हूँ, इसलिए मेरी शुरू से आदत ये थी, हर 3-4 महीने में आई वुड टेक अ 10 डे वेकेशन, जस्ट लाइक दैट. दुनिया में सब ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले रहे भाई? हम भी लेंगे. तो शुरू में मुश्किल होता था, फिर मैं, अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है मेरी लाइफ के अंदर ये चीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज पहले क्या होता था कि छुट्टी पे नहीं जाएंगे ना आप, तो यू गोइंग टू रियली हेट योर फील्ड. People already hate you as a dentist, right? And then you will also hate dentistry. So who's going to do the work? So you take the 5 days off. That's what I think. थैंक यू सर. एंड इसी से रिलेटेड है, बर्नआउट से रिलेटेड, अमंगस्ट द यंग कम्युनिटी, मोर सो यंग डेंटिस्ट, हाउस जॉब Hmm. स्टार्ट होती है, एंड हमें टेंशन शुरू हो जाती है कि हाउस जॉब के बाद क्या करना है, एंड उसमें भी एक सिवियर बर्नआउट आ जाता है, बिकॉज आप ओवरवेलम हो जाते हैं इतनी ज्यादा ऑप्शन से. एंड वे जस्ट Hmm. डेंटिस्ट जो सिर्फ उनके पास एक डिग्री आई है. तो इस पे आप क्या कहेंगे कि हाउस जॉब रिलेटेड डूज एंड डोंट्स क्या है फॉर यंग हाउस ऑफिसर्स? So अच्छा, माय जो मेरा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि यू हैव टू जस्ट, व्हेन यू गेट इनटू हाउस जॉब ना, नाउ यू आर अ डेंटिस्ट, सो यू शुड ट्रीट इट दैट. अब द वर्ल्ड विल ट्रीट यू लाइक अ किड, बट इफ यू आर गुड एट इन योर हाउस जॉब, सही है, you will be you will have better opportunities of, you will create more contacts, you will get better chances of getting hired in better places. And उसके अंदर जो आपकी रोटेशन है, अब मुझे नहीं पता कैसी होती. नहीं, हमारे I was the best house officer of our batch. अभी ये 2007 की बात हो गई है ना, 2007. आई वॉज द बेस्ट हाउस ऑफिसर. वाई? बिकॉज मैं उस जमाने में हैंड मैनुअल, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी करता हूँ आज के स्टैंडर्ड से, लेकिन उस जमाने में आई यूज टू डू अ ग्रेट जॉब. सारी स्केलिंग वो मैनुअल कर करके, और एक्सट्रैक्शन मेरी सारी भरी हुई, फिलिंग मेरी भरी हुई, एक्स्ट्रा टाइम पे जा जाके काम कर रहा था. मैं वो अपना वो नहीं कह रहा कि मैं बहुत कमाल था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मुझे इसलिए उन्होंने अवार्ड दिया था क्योंकि मेरे नंबर्स बहुत अच्छे थे और मेरा काम भी अच्छा था. तो हाउस जॉब में, हाँ, हाउस जॉब में, सो यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ एज अ डेंटिस्ट, बट यू हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग seniors and teachers to correct you when you make a mistake. So to accept a mistake, you have to first make a decision. तो आप पहले आपने डिसाइड, पहले डायग्नोसिस अपनी अच्छी सी करें, उसमें बहुत अच्छी सी ट्रीटमेंट करें, उसे अपनी दिल की तसल्ली मतलब हो उसके अंदर ना, मैं अच्छा काम किया, एंड देन गेट इट रिव्यूड बाय पीपल. व्हेन आई हैड स्टार्टेड डूइंग क्राउन प्रेप्स आफ्टर माय हाउस जॉब, जिस जिस लैब को हम क्राउन बनवाने के लिए भेजते थे ना, मैं उनको कॉल करके, उनके ओनर को मैं उनसे कॉल करके पूछता था कि मैं क्राउन प्रेप भेजी, आपको कैसी लगती है? तो वो मुझे बताते थे, नहीं डॉक्टर साहब, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया. वो मुझे सीरियसली ले लेते थे इस वजह से. सो माय वर्क इम्प्रूव बिकॉज आई यूज टू
listen to everybody's feedback or criticism for that matter. बिकॉज वो नहीं सुनता तो मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत ही निंजा एक्सेस बनाता था रूट कनाल के अंदर। फिर मेरे एक हैं सीनियर, उनसे अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मेरी उन्होंने ऐसे भरी महफिल में जलील किया था मुझे। एंड इट वाज अ बिग शॉट ऑन माय ईगो बिकॉज आई वाज रियली गुड एट इट, बट ही वाज लाइक, यू कंप्लीटली रॉन्ग। एंड ही इज एन एमएससी इन एंडोडोंटिक्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। दे स्टडी री रूट कनाल्स फॉर 3 years। 3 साल से रूट कनाल सीख रहे हैं, उनको मुझसे तो बेहतर ही पता होगा ना। तो मैं पूरा अपना कहा यार मैं इनसे सीख लेता हूँ। तो देन आई चेंज माई एंटायर वे ऑफ हाउ आई डू माई रूट कनाल, यू नो। सो as during your house job in the first 2 years, just do more work and get feedback on it. They may be right, they may be wrong, but it will change your perspective about your clinical work as well. Okay, sir. And we'll have our last question. Hmm. Suggestions for undergrad students apart from academics. Basically, हाँ, इसमें very कहना good. करूँ कि CV को कैसे improve करें? How do we stand out in the market? ये डेंटल मार्केट जो है ना, उसमें ये होता है कि हायरिंग मोस्टली होती है कॉन्टैक्ट के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर हो। नंबर वन। नंबर टू, योर सॉफ्ट स्किल्स, यानी हाउ आर यू डीलिंग विद पीपल, पेशेंट्स एंड योर टीम। ठीक है। सो अ गुड पर्सनालिटी विल टेक यू लॉन्ग वे। Your skills, if I hire a fresh graduate, I don't expect them to do amazing clinical work because I know कि ओपीडी में किस तरह का काम हो रहा है। मैं वो कुछ लोग करने को तो मुझे बहुत हैरान करते हैं, बट आई वुड नॉट थिंक कि उन लोगों को बहुत अच्छा काम आएगा अभी। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल ईयर्स ही कम है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो, बातचीत अच्छी हो, साफ सुथरे हो, पेशेंट एंगेजमेंट अच्छी हो, पेशेंट से रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी आती हो। इस बेसिस पे आई कैन हायर देम। बाकी सीवी के अंदर आप, फॉर मी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग कर रहे हो ना ये डेंट कॉन, अभी जायदा हो गई, आप हो गई, आपकी पूरी टीम हो गई, कोई भी ये चीजें लिखेगा ना कि हम कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, या हम जो है वो सोशल वर्क करने जाते हैं, या हम जो है वो कोई ट्री प्लांटेशन करते हैं, कोई डिबेटें करते हैं, या स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सही है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने 400 सर्टिफिकेशन की हुई हैं, क्योंकि उससे मुझे, मेरे ख्याल से लोगों को याद ही नहीं रहता। तो आपने 10 सर्टिफिकेशन किए होंगे, आपको याद ही नहीं होगा कि क्या पढ़ा था। बट पर्सनालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। इफ यूर स्पोर्ट्स पर्सन, इफ यूर सोशल पर्सन, इफ यूर इंटरेस्टेड इन doing some classes here and there, whatever, extracurricular activities really matter as far as I'm concerned. Okay, Thank sir. you so Thank much, sir. Wonderful answer. I just want to like end this session by asking you one last question from my side. Okay, Hmm. what one advice that you want to give to the students who have recently graduated or are done with their house job? जो recent graduates में उसको आप एक advice ऐसी देना चाहते हो, life advice, so that उनके काम आए. हम्म। अच्छा, तो मेरा इसका जवाब ये है सीधा सा कि if you think about whether you want to do dentistry as a profession or not, ठीक है, whether you're passionate about it. If you're not passionate about it, there are a lot of fields that you can now switch on to. उसमें कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया में पूरी दुनिया करती है इस तरह। You can get into health management, you can get into public health, you can get into dental services, dental product services, equipment manufacturing, equipment sales, बैंकिंग, आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें हैं। वो जो भी पैशन है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने डेंटिस्ट्री पढ़ के डेंटिस्ट बन गए और आपका एक चीज में दिल नहीं लग रहा, आप ना करें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। द ओनली रीजन व्हाई आई लाइक practicing all this is because I like it. I would otherwise, if I hated it, I would not do it. So it's a real question for everybody who's graduating. Acha, because I know so many teachers, I know a lot of students are not interested in becoming dentists. वो ऐसे ही बस बेचारे बन जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो जिनको शौक होता है, एक्चुअली ना पैशन होता है बनने का। तो अगर आप ऐसे ही बन गए तो आप ना करें, आप कुछ और कर लें जो आपका दिल करता है, बिजनेस बिजनेस कर लें कोई। और अगर आप ट्रूली डेंटिस्ट्री पैशन से प्रैक्टिस करेंगे सारी जिंदगी, तो फिर एक तो ऑनलाइन कोर्सेज, आर्टिकल्स, और skilled workshops, and then put in your own effort. Sit in your house job hospital,
and work on extracted teeth. Like really get the knowledge. अभी बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना नहीं आता. मेरा one of my main selling points is that I try to I do the exact bookish methods faster than Jugadu methods. It's a big deal. It's not easy. So you have to do that so many times that you are fast at it. कि आपको जुगाड़ करनी ना पड़े. जुगाड़ तो आप तब करते हैं ना अगर कुछ सही नहीं हो रहा. तो आप डायरेक्ट 1 to 20 स्टेप्स पूरे करें और आप अपना अच्छा सा काम करके दे दें. सो दैट्स हाउ यू विल रियली इट विल हेल्प यू थिंक लाइक अ प्रॉपर सक्सेसफुल लाइक अ थिंकिंग डेंटिस्ट कि मैं ये कर रहा हूँ इसका ये आउटकम है फिर मैंने ये किया तो अब इसका ये आउटकम है. अगर ये आउटकम नहीं है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे मैनेजमेंट आ जाती है. सो ये सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब आप ज्यादा ख्वारी सिंपल से टर्म्स में ज्यादा ख्वारी करेंगे. अपना अभी उस दिन किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर हाउ मेरे पास रबर डैम शीट नहीं है. तो उसने मुझे because मुझे कोई अपना रबर कोई रूट कनाल शेयर करता है ना हाउस ऑफिसर बहुत एक्साइटमेंट से तो मैं उसमें नजर नहीं आता मुझे क्लैंप तो मैं बोलता हूँ रबर डैम नहीं लगा हुआ तो फेल हो जाएगी. क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं है ये तो रिसर्च कहती है. नन ऑफ दिस इज माई वर्ड दिस रिसर्च. एवरीबडी नोज. अगर कल आप भी अपनी रूट कनाल करवाएंगी किसी से तो आप चाहेंगी ना कि रबर डैम लगे अच्छे से डिसइंफेक्ट हो. लेकिन किसी और के मुंह में करने बैठ जाएंगे और आपको पता है कि वो फेल होगा. तो मैं ये बोलता हूँ तो उस पे वो बोलते हैं कि नहीं सर वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं था या ये था वो था. तो आई मीन ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू स्पेंड 2,000 रुपीज ऑन अ मैकडोनल्ड्स मील टुमारो राइट बट आई वोंट गो एंड बाय अ होल किट फॉर 2,500 रुपीज. इट्स it's just that you don't think of it that way. तो आप 5,000 रुपये डेजिग्नेट कर दें डेंटल मटेरियल के लिए. कोई चेयर वेयर तो लेनी नहीं है कंप्रेसर लेना नहीं है. वो कॉम्पोजिट ले लो बॉन्ड ले लो डैम ले लो छोटी छोटी चीजें हैं वो थोड़े से जमा करो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो. ये डिफीटेस्ट आंसर होता है कि ये नहीं था तो मैंने ये कर दिया. तो फिर ये तो बहाना ही होता है. तो बस घुस जाए जिसको घुसना है वो प्रॉपरली घुसे और जिसको नहीं घुसना वो कुछ और कर ले. वो उसमें कोई बुराई नहीं है. Well, thank you so much, sir, for this wonderful lecture and this heartfelt talk जो आपने दी है. It really means a lot to us, and it was very thought-provoking. काफी real talk मिल गई कि क्या क्या करना है आगे. थैंक यू. And we would like to take a final picture with you, sir. हाँ Zahida. I will request everyone to please open their cameras. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच. Thank you for अच्छा वो joining, sir, and एक और taking out चीज time. इसमें सुनो मैं ये कहना चाह रहा Yes, था कि sir. डिजिटल के अंदर जो डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर ना सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. और अभी किसी ने सवाल पूछा तो मुझे याद आया कि सोशल मीडिया इज नॉट अ जोक है ना. एंड इफ यू थिंक यू इफ यू आर अनेबल टू शोकेस योर वर्क ऑन सोशल मीडिया यू आर गोइंग टू बी 30,000 years old and you won't excel. तो it's your third eye. यानी if I take a picture of a case and review it after 2 weeks ना तो मुझे नई बात समझ आती है यार मैं इस तरह कर लेता उस तरह कर लेता. तो वो बहुत हेल्पफुल है आपकी इम्प्रूवमेंट के अंदर. तो बस मेहनत करें शाबाश अच्छा हो जाएगा सब. Thank Inshallah, you sir. so much, Thank you so sir. much. थैंक Thank you for यू. thank you for joining us, sir. We hope you had a great experience. हाँ माई इंस्टा आई डी इज डॉक्टर श्वेत दुरानी सिंपल. तो ये बता देंगे आपको डॉक्टर मारिन आई एम श्योर. We'll share your तो Yes, socials, sir. sir. Below. हाँ शेयर देम जरूर. यस एग्जैक्टली. ठीक है थैंक यू सो मच ग्रेट शो एंड ग्रेट आई होप दैट यू गाइस हैड सम बेनिफिट out of this session and like I said I can be reached out for any serious queries on my contacts which are publicly available चाहे वो Instagram हो या मेरा email address हो तो वो कर लें और फिर accordingly I really appreciate people who देखो मुझे मैं इतना काम किया है कि मुझे पता होता है कि कोई सीरियसली काम कर रहा है या ऐसी सवाल पूछा है ना. तो अगर कहीं कोई सीरियसली फंसता है ना तो मुझे पता हो जेन्युइनली फंसा हुआ नहीं फंसा. So you will really gain true answers if you ask me real questions. And if you say hi, so then I don't reply.
एंड थैंक यू सर, तो शायरी हमेशा थी एपीडीएसए बिल्कुल। के लिए टाइम निकालने के लिए आप हमेशा अवेलेबल नहीं, रहते हैं। यू एपीडीएसए आर एब्सोल्युटली फेवरेट ऑफ एपीडीएसए। APDSA is my favorite because it's a student run organization। और मैंने ये पहले भी आपको बोला था जब हम वो सिंपोजियम पे था, कॉन्फ्रेंस जो थी। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज आई बहुत दिनों बाद आई हैड dealt with real students and it was amazing to see कि fully functional organization है और इतने तरीके से काम कर रहे हैं। It's a great thing for the future of dentistry। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। Thank you everybody। Allah ओके Hafiz। सर, टेक केयर, खुदा हाफिज। Marish, please give your ending note. Well, to our dear audience, we extend our heartfelt gratitude for joining us throughout these 3 enlightening days. Your unwavering dedication to professional growth and passion for dentistry is truly commendable. Rest assured, the future of dentistry rests in capable hands. We hope that your experience with APDSA Pakistan has been enriching. May you swiftly achieve all your career aspirations. Thank you for your participation. It has been an honor to host this event for you. This is Marit Said bidding you farewell. Allah Hafiz. And I just want to say one last thing to you all. We are planning to host more webinar series in the upcoming month. We have already one proposal ready for that. It's really like a sneak peek I'm telling you all. I won't tell you the topic regarding that, but I would love it if you will join it further too. You will get all the updates in the coming month of June, inshallah, for the next month. So take care, everyone. Thank you for joining. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone.